हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कन्वर्सेशंस। आज हमारे साथ हैं आशीष गोविंद राव जी। आशीष सर हैज अ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 years. He is a faculty of physics and mathematics. आज हम आशीष सर से डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन और क्लासरूम एजुकेशन में फर्क होता है और कौन सा मीडियम ज्यादा अच्छा होता है। This video is brought to you by EduCoach. EduCoach is India's leading coaching institute aggregator platform, bringing together offline and online form of coaching institutes of the education ecosystem. Our data-driven search engine technology guides aspiring students at each step, assisting them with all their educational uncertainties. We cater both end users and educational channels which are probably from all streams, namely IIT JEE, NEET, Civil Services, CA, CS, SSC, government exams, CLAT, CAT, board preparation, school level, and Olympiads, thus building unwrinkled connections between students and coaching institutes. With high maturity leads conversion ratio, we are enabling coaching centers to give maximum time focusing on academics itself, which will definitely translate to better exam preparation and will result to good All India ranks selection ratio from coaching centers. वेलकम सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेबस एक जैसा होता है, सब कुछ एक जैसा होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस की अगर बात की जाए, अभी कोविड का ये हमने पूरा सिनेरियो देखा, सारे स्कूल जो थे उन्होंने ऑनलाइन सारे स्कूल्स जो थे उन्होंने ऑनलाइन मीडियम को अडॉप्ट किया। तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन मीडियम रिप्लेस कर सकता है ऑफलाइन मीडियम को? Can it No, be sir, a I don't think substitute? so. No, sir, no, not at all. I don't think so. I think online mode of education is just a temporary, or you can say provisional arrangement. Okay. Especially in the case of COVID-19 pandemic, there are certain limitations with online education, like what I have observed with my own experience. First thing is that online classes are less interactive in comparison to offline classes. The extent up to which students have freedom to interact with their teachers or faculty in offline classes, that is not possible in offline classes. Like for example, if a certain student has a specific problem in a particular line in derivation of a formula or some conceptual problem, he or she can immediately sort it out in the class during offline classes. But that is not possible in most of the cases in online classes. ओके तो सर एक तो ये कि इंटरेक्शन की जो जितनी कैपेसिटी हम कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेज में होती हैं वो ऑनलाइन क्लासेज में नहीं होती, एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा सर, अब अगर मान लीजिए बच्चे को किसी पर्टिकुलर लाइन में प्रॉब्लम है या कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, ड्यू टू हेजिटेशन ही इज नॉट एबल टू आस्क इन ऑनलाइन क्लास, और ड्यू टू यू कैन से लैक ऑफ टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस की वजह से, तो दैट प्रॉब्लम परसिस्ट्स। फिर वो प्रॉब्लम फिर कैरी ऑन करती है और फिर फर्दर इट टर्न्स इनटू ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। फिर फर्दर उस बच्चे को आगे कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा डिफिकल्टी होती है चीज़ों को समझने में, सब्जेक्ट को समझने में, और फिर ये प्रॉब्लम फिर आगे कंटिन्यू करती है। दूसरी बात सर, मैंने एक और ऑब्जर्व की है कि जैसे कि ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट्स का आपस में भी एक इंटरेक्शन होता है, दे कैन इंटरेक्ट टुगेदर, दैट इज नॉट पॉसिबल इन ऑनलाइन क्लासेस। ओके, so there are many hurdles, you can say there are technical hurdles, or you can say at the learning level students do not have that level of freedom which are required and which are possible in offline classes, that is not available in online classes. Okay. Yes sir. So interaction among the students and interaction with the teachers is very important. So this brings me sir, to my second question. yes, teaching का जो प्रोफेशन है उसमें ह्यूमन टच की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। दूसरों को समझाने के लिए ह्यूमन टच बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में ये लैक करता है। तो वो ह्यूमन टच का क्या इम्पैक्ट आता है स्टूडेंट्स की लाइफ पे, उस पे प्लीज थोड़ा बताइए।
जो सर देखिए इंटरपर्सनल टच ह्यूमन होता टच, है टीचर्स और स्टूडेंट्स का? हाँ श्योरली सर, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए जहाँ तक ह्यूमन टच की बात है कि वी नो दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर, वी हैव इमोशनल कोसेंट आल्सो, हम्म। and overall human being is a multifaceted personality. It has many dimensions. We have body, we have mind, and we have heart and soul also. So if we talk about metaphysics, we accept the concept of soul also. So heart की जहाँ तक बात है सर, emotional quotient that is related to heart, and unless we get a human touch with the students, we cannot motivate the students. This is the basic thing. So if a teacher is able to connect with the students with his or her problem at a specific level, हम्म। if the teacher can understand the problem of the student and he can sort it out immediately, definitely it creates a human, uh, it connects with the students at human ground, at ground of heart, and that is very necessary, because to get the best of the students, motivation is very necessary. And I think without human touch, without connecting with the students emotionally, we cannot motivate him. Like I have read about the concept of a teacher. We say that a good teacher tells, the better teacher explains, the superior teacher demonstrates, and the best teacher motivates. So unless we are able to motivate the students, we cannot bring best out of him. And to bring out best, motivation is necessary. And for motivation, I think connecting with the student at uh, emotional level is very necessary. If a teacher can own the student, if he treat the student like his own child or own his, he specifically understands his problem, he has specific solution for that, definitely teacher can connect with the student, and in that case he can explore all the dormant potential of the student. It is my personal belief. अगर टीचर बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्टेड है तो वो उसका बेस्ट निकाल सकता है वहां से, और बिना इमोशनली कनेक्ट हुए वी कैन गेट an average or mediocre performance, mediocre output. We cannot excel the excellent. I think so. So emotional connect is very necessary when it comes to the students. और अगर टीचर स्टूडेंट से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बेस्ट निकाल जी सर, सकते हैं। और जैसा कि सर ने बिल्कुल बोला सर। कि जो बेस्ट टीचर होता है वो मोटिवेट करने का काम करता है। एंड आई पर्सनली सीन सर इन माय लाइफ, मेरे कुछ पर्सनल यस सर। एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं जहाँ पे जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट टीचर जिनको मैं आज मानता हूँ उन्होंने जी मोटिवेट सर। किया था। हम्म। सर जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, हम लोग ब्लैक बोर्ड पे जी सर। पढ़ा जी करते सर। थे। अभी दोज हम्म। ब्लैक बोर्ड्स, जैसे जैसे हम ग्रेजुएशन टाइम तक पहुंचे तो हमने देखा दोज ब्लैक बोर्ड्स वर रिप्लेस बाय व्हाइट बोर्ड्स। अब जो यस बच्चे सर। आ रहे हैं वो व्हाइट बोर्ड पे भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं ये चेंजेस आए, स्लेट से ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड। सिमिलरली कहीं यस ना सर। कहीं जापान में देखिए या चाइना में देखिए, क्लासरूम एजुकेशन में भी, चाइना स्पेशली हम्म। क्लासरूम एजुकेशन में भी they've started using robots. So how do you यस सर। see this? Is this a boon or this is a bane? Sir, what I think, their technology always have both aspects. It has, it may be a boon, may be a curse. It depends how we use it. Okay. Ultimately, the technology is made or created by us. So, like we can see the situation of right now that is going pandemic of coronavirus. Mm-hmm. Some say it has been created in the labs. Some say it is just a natural virus. So, but it's a fact that in the present scenario, we have totally failed to deal with it. Hmm. Millions of people are badly affected. It's become a global problem. Almost lakhs of people have lost their lives. But technically, we are not no atom bomb, no nuclear power, any type of development, technical development, robotics has completely failed to deal with it. So I think if robots replace the teacher, first thing I believe that it is not possible, Okay. because obviously robotics have better brain. They can do the work more perfectly, accurately. Accuracy level is there, precise. They can do the work more precisely. But as far as human being concerns, as I told you that all human beings are emotional entity also.
So robots can never connect with the students at emotional level. They can deal the technical issues, but they cannot connect with the students at emotional Emotional level. aspect. And I yes sir, and I think one more thing is there. And without connecting with emotional level, motivation is not possible. Okay, so they can sort it out their technical issues, but what I think, never robots can never replace a teacher. Okay, and second thing is that, as you said about digital classes or digital board, Hmm. yes, in present scenario, technically digital boards are more equipped, they are technically more efficient, so it can be a substitute of blackboard. But unless there is a presence of a teacher, a human being is there, uh, the problem will continue. तो एक तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड तो ले सकता है, क्योंकि उसमें अगर जैसे कल तक जो था, जब फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हम कहते हैं कि हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक एज में हम लोग बिल्कुल कच्चा खाना खाया करते थे, बिना भुना हुआ जो है फ्लैश खाते थे। फिर जैसे जैसे फायर का इन्वेंशन हुआ, तो हमने और बेटर तरीके से उसको फिर रोस्ट करना स्टार्ट किया, हमने खाने को पकाना स्टार्ट किया। फिर बाद में धीरे धीरे हमने कोल का यूज करना स्टार्ट किया। फिर फर्दर डेवलपमेंट के बाद हम नेचुरल गैस और आज हम एलपीजी यूज करते हैं। So there, I don't believe that it is better to use coal or wood in place of LPG. So we should accept technology. So yes, digital boards are better than blackboard in present scenario. Okay, if they can deal with the students' problem in a better way. But as far as robots concerned, I Hmm. think the presence of teacher do not have any substitute. Emotional bonding with the students, motivation level of the students, and most important things, that robots can never be so interactive as a teacher. If a student has any type of, students may have many types of problem in the class. It is not necessarily just subject related problem. It has, if any social issues, any type of peer pressure, any type of family problem is there. If the teacher is emotionally connected with the students, he can deal the problem at that level. That is not possible in robots, because robots it performs on a certain programming. Hmm. Okay, so I think there need a presence of mind that is possible in teacher, not in robots. I think so, sir. ओके सर, पास्ट की आपने बात करी, आपने प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात करी, और आपने बोला कि पहले हम फायर नहीं था तो हम कच्चा खाना खाते थे। जी थोड़ा सर। सा और आगे ले चलते हैं, बट पास्ट की बात ही करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो भारत की थी, जी उसमें सर। दूर दूर से स्टूडेंट्स आते थे, तो कहीं ना कहीं हम्म। हमारी वो एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी। अब जो जी सर। टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। लोग अपने अपने घरों पे वापस आ गए हैं और शायद बाहर जाने से डरेंगे। तो जी इस सर। समय पे आप ऑफलाइन एजुकेशन को कैसे देख पा रहे हैं? जो यूनिवर्सिटीज में बाहर से लोग हमारे यहाँ आते थे, चाहे हम बाहर जाके आज स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे थे, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये तो एक ड्यू टू एक पेंडेमिक सिचुएशन ये क्रिएट हुआ है कि बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोगों का बाहर जाना, ये काफी हद तक ड्यू टू दिस प्रॉब्लम स्टिल वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन। ये प्रॉब्लम है, चाहे हम अपने किसी भी एजुकेशन सेक्टर की बात करें, आइदर इट इज प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, और इवन वी टॉक अबाउट हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, we are facing some serious problems at all levels. Like we take example of primary level, there is a crisis of teachers. If there are teachers, there is not infrastructure. If infrastructures and teachers both are available, they are not students. If students are there, teachers are not willing to teach. Okay, the same problem persists in secondary and senior secondary schools also, especially in government sector. Yes, I do not deny that many of the government organizations are doing very well, but I think majority of institutes, government institutes, are not doing their job honestly, especially in the primary and secondary education sector. So we talked about higher education, the situation is same. I think we have the maximum number of universities and degree colleges in India and technical institutes also. But unfortunately, in top 100, hardly we have one or two institutes. So this is an unfortunate situation. In the last 70, 75 years of development after freedom, still we don't have a proper infrastructure of well-equipped educational institutes. If we talk about topmost technical institutes, there are a number of institutes from Europe, America, and even China.
चाइना जो हमसे करीब 5 इयर्स के बाद उसको इंडिपेंडेंस मिली, आज वो हमसे एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे। इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी अगर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वो भारत से कहीं ज्यादा चाइना से हैं, यूरोप से हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में अगर हम कुछ एक आईआईटीज को छोड़ दें, टुडे वी हैव मोर देन 20 आईआईटीज, बट हार्डली वेरी फ्यू ऑफ देम हैव दैट क्वालिटी। लाइक आई थिंक आईआईटी दिल्ली लास्ट ईयर की रेटिंग में फर्स्ट टाइम अंडर 100 आ पाया था। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन में हम कितने पीछे हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें मैनेजमेंट कॉलेजेस की, तो मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी वी हैव बेस्ट आईआईएम्स इन इंडिया, दे आर बेस्ट, बट एट ग्लोबल लेवल दे आर नॉट इवन इन टॉप 100। तो दिस इज द सिचुएशन। ये बताता है कि अभी हमें कहाँ तक काम करना है जी। यस, इंडिया में हमारा डेवलपमेंट हुआ है, बट जब हम ग्लोबल डेवलपमेंट से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो स्टिल वी हैव टू डू अ लॉट। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज हैं और दूसरी चीजें हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अब इसको एक कंडीशन आ गई है जहां हम एजुकेशन को बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, कंडीशन ऐसी आ गई है जहां हम एजुकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सर अभी जब से कोविड-19 आया तब से ऑनलाइन एजुकेशन को देखा जाने लगा कि भाई ये तो एक इमर्जिंग कल्चर है, ये एक ऑल्टरनेटिव है। बट ऑनलाइन एजुकेशन तो काफी समय से चला आ रहा था। ये जितने सारे सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो चैटिंग हो गई, स्काइप भी आज का नहीं है, स्काइप भी बहुत पुराना है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अभी जब ये पैंडेमिक आया, कोविड-19 का सिनेरियो आया, तभी ऑनलाइन एजुकेशन का ये बूम आ गया और लगा कि नहीं, दिस इज द फ्यूचर, जबकि कॉन्सेप्ट तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। यस सर। वो किस एक्चुअली व्हाट हैपेंस, नेसेसिटी, वी से दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो पेंडेमिक, ये जो कोविड-19 का क्रिएट हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन इसके पहले भी था, बट इट वाज नॉट टेकन एज अ सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव ऑफ ऑफलाइन एजुकेशन। इतनी जो फिजिबिलिटी, जो कन्वीनियंस स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एजुकेशन के साथ मिलती थी वो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं थी। यस, ऑनलाइन एजुकेशन की अपनी कुछ स्ट्रेंथ भी हैं, जैसे लाइक कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे वी हैव क्राइसिस ऑफ गुड टैलेंटेड फैकल्टीज इन एनी सब्जेक्ट। we take about technical education or we take about engineering, medical or humanities, in any subject, any stream, we are lacking the good faculties. Okay, so till some extent it has been compensated by online education. Like if there is a good teacher, he can provide his services to online education at many institutes simultaneously. That is not possible in offline, क्योंकि टीचर फिजिकली तो एक जगह, एक टाइम में एक ही जगह प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन में यह है कि वो अपनी सर्विसेज कई जगह दे सकता है। अपने जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो वीडियो हैं, जो भी उसके पास स्टडी मटेरियल है, बट ये फैसिलिटी ऑफलाइन क्लासेज में नहीं है। तो एक पॉपुलस कंट्री इंडिया जैसी है, यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास जो अच्छे फैकल्टीज हैं, चाहे वो आईआईटीज के हैं, चाहे आईआईएम्स के हैं, चाहे हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में वी हैव pool of dedicated and talented faculties in Kendriya Vidyalayas, Navodayas, even in private sector we have good set of faculties. तो जहाँ पर अच्छे टीचर्स की क्राइसिस है, वहाँ इन टीचर्स की सर्विसेज को हम ऑनलाइन एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब हम कह सकते हैं कि इट कैन कॉम्प्लीमेंट द ऑफलाइन एजुकेशन, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, नो वन कैन रिप्लेस ईच अदर। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है। ऑफलाइन एजुकेशन में जैसा कि मैंने बताया कि एक टीचर मल्टीपल प्लेसेस पे जाकर टीच नहीं कर सकता, या हम एक रिसोर्स को कई सारी जगहों पे यूज नहीं कर सकते, बट ऑनलाइन का ये है कि एक स्टडी मटेरियल को हम मिलियंस ऑफ प्लेसेस पे सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, घर बैठ के हम MIT और IIT के फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इसका। तो हमें एक ओपन माइंडेडनेस के साथ स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे लगता है सर। लेकिन ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री है ऑफलाइन एजुकेशन का, दोनों साथ साथ चलें तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया दे कैन क्रिएट मिरेकल्स। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और अगर दोनों साथ साथ चलें तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया दे कैन क्रिएट मिरेकल्स। सर K-12 बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या प्रेफर्ड रहेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन पे जाएं या ऑफलाइन एजुकेशन पे जाएं? देखिए सर,
K-12 लेवल की बात है, सेकेंडरी लेवल की बात है, या इवन प्राइमरी एजुकेशन की बात है सर, तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, इस लेवल के बच्चे ज्यादातर सेल्फ ड्रिवन नहीं होते। एक क्लास में अगर आप देखें तो 45-50 की स्ट्रेंथ होती है, और उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ऑब्जर्व किया है, 70-80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो विलिंगली पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है सर। तो ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को इतनी फ्रीडम रहती है तो उनके पास कोई मतलब टीचर का कोई सुपरविजन या ऑब्जर्वेशन नहीं होता, तो उनके पास एक पूरी छूट होती है कि आसानी से वो क्लास को स्किप कर सकते हैं। टीचर को इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस चीज को टीचर या फैकल्टी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन है ऑनलाइन एजुकेशन की। गैजेट्स उसके पास अवेलेबल हैं, लेकिन गार्जियन जो है, अभी हमें पता है कि हमारी 70% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, तो पेरेंट्स आर नॉट वेल इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, या है भी तो फिर वो उसको यूज करना नहीं जानते। तो इस केस में बच्चा उनको अपने तरीके से मैनिपुलेट भी करता है। वो फोन लेके बैठता है, लैपटॉप लेके बैठता है, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है लेकिन वो करता कुछ और है, गेम खेलता है, कुछ भी करता है इस तरह से। तो सर इसमें एक ऑब्जर्वेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लास को हम सुपरवाइज नहीं कर सकते, सुपरविजन नहीं हो पाता क्लास का, और एक तो ये डिसिप्लिनरी इशू क्रिएट होता है कि अगर ऑनलाइन बच्चे 50 बच्चे सामने बैठे हैं लेकिन एक्चुअली कितने पढ़ रहे हैं ये आपको पता नहीं होता। तो ये चीज ऑफलाइन में की जा सकती है। बेटर ऑब्जर्वेशन, बेटर सुपरविजन एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ द क्लास इज पॉसिबल इन ऑफलाइन क्लास, दैट इज नॉट इन ऑनलाइन क्लास। दूसरी बात सर ये कि असेसमेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफलाइन क्लास में अगर हमें पता है कि आज इन 50 बच्चों का टेस्ट होना है, तो हम इजिली उस टेस्ट को वहाँ कंडक्ट कराते हैं, और हर बच्चे को 1-to-1 असेसमेंट हम कर पाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उसको हम सोल्यूशन देते हैं, रेमेडी देते हैं। अगर उसको जरूरत है तो रिमेडियल क्लासेज की, या फिर मतलब एक बिल्कुल इंडिविजुअल माइक्रो लेवल तक जा करके हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को डील करते हैं। ऑफलाइन क्लास में सर ये पॉसिबल नहीं होता। आपने कोई प्रॉब्लम दी तो वो बच्चा कैसे करके उसको सेंड करता है आपको, वो कहीं से चीटिंग करता है, कॉपी करता है, तो एग्जैक्टली उसका मतलब 100% एक फुल प्रूफ सिस्टम आपके पास नहीं होता कि बच्चों को असेसमेंट और ठीक से करा पाए। हाँ, ऑनलाइन क्लासेज अगर बच्चे सेल्फ ड्रिवन है, वो खुद मोटिवेशन उनके भीतर है, दे वांट टू डू समथिंग एंड दे आर हाईली मोटिवेटेड, देन इट वेरी गुड। लेकिन ऐसे बच्चों को जहाँ हमें सुपरविजन की जरूरत है, जिनको पुश करके पढ़ाने की जरूरत है, और जैसा कि ज्यादातर हमारे स्कूल में होता है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम होती है सर। तो मुझे लगता है K-12 लेवल पे ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। और अब K-12 लेवल पे अगर सर बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन इसके बाद आते हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे वो डिफेंस में जाना हो, एक तरह से वो गेटवे है। तो वहाँ बच्चों को कंसेप्चुअल पार्ट पे भी डील करना होता है, और साथ साथ एप्लीकेशन पार्ट पे भी डील करना होता है। तो कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे लगता है ऑफलाइन क्लास में ये चीज फैसिलिटेट होती है। बच्चे को किसी लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर सकता है, उसी टाइम पे खड़े होकर टीचर से पूछ सकता है या अपने क्लासमेट से पूछ सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर वो प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, बनी रहती है, तो फिर फर्दर वो आगे की प्रॉब्लम्स में वो एड ऑन होती जाती है, और एक छोटी प्रॉब्लम भी बाद में कॉम्प्लेक्स बन जाती है। ठीक है। और जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है तो बच्चा एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाता तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, कहीं ना कहीं उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो चीज हैमर करती है, और ये अल्टीमेटली उसके करियर को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, ऐसा मानना है। तो डेफिनेटली K-12 एजुकेशन में भी आई थिंक ऑफलाइन क्लास इज द बेस्ट, बट यस वी कैन यूज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। जो बेस्ट हमारे फैकल्टीज हैं, उनके लेक्चर्स, उनके ऑडियो, उनके वीडियो, उनका स्टडी मटेरियल जो मतलब ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है, वहां से हम अवेल करा करके बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऑनलाइन क्लास कॉम्प्लीमेंट करती है ऑफलाइन क्लास को, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को परफेक्ट बनाते हैं। तो दोनों की अपनी स्ट्रेंथ है, दोनों की अपनी वीकनेस है। ठीक है, तो हम अगर दोनों को लेकर चलते हैं साथ में, दोनों को वाइजली यूज करते हैं, तो आई थिंक वी कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। बट यस, जहां तक इंडिया के केस में विच वन इज बेस्ट फॉर K-12, 100% इट्स ऑफलाइन क्लासेज आर बेस्ट। सर हेलो। कई सारे ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अब बूम अप हो चुके हैं। ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से जब कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल नहीं होता है एक फिजिकल ब्रांच खोलना,
it has become very easy for them to open satellite centers. और कहीं ना कहीं सैटेलाइट सेंटर्स का ट्रेंड भी काफी ज्यादा आ गया है, और कोविड से पहले ये ट्रेंड काफी ज्यादा आ गया था. तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खास तौर पे बात करें, जैसे अभी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करी, तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट के माइंड में चूज करने से पहले कि उसे ऑफलाइन सेंटर यूज करना चाहिए, वहां ज्वाइन करना चाहिए, या फिर एक ऐसा सेंटर जो सैटेलाइट सेंटर है जहां पे डिजिटली क्लासेस डिलीवर की जाती हैं, या आपके फोन पे आ जाते हैं क्लासेस, उस तरह से कुछ ऑनलाइन अवेल करना चाहिए? सर देखिए, बच्चा ऑनलाइन क्लास की तरफ क्यों जाता है? ऑनलाइन कभी भी उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं होती. ऑनलाइन क्लास में तभी जाता है वो जब उसको अपने जिस शहर में रहता है, किसी छोटे शहर में है जहाँ कोई सो कॉल्ड रेप्यूटेड कोचिंग कोई नहीं है, या उस लेवल के फैकल्टी उससे नहीं मिलते, तो फिर वो सब्स्टिट्यूट ढूंढना स्टार्ट करता है. Okay. इस केस में अब वो देखता है, वो ही लुक ही सर्चेज इन द मार्केट. मार्केट में कौन सा ब्रांड है. जी. उसने एक मतलब हमें पता है एक ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, एंड वी आर आल्सो टिल अ लार्ज एक्सटेंट आर ड्रिवन बाय मार्केट. तो मार्केट में जो लोग अपनी ब्रांडिंग किए हुए हैं, या काफी हद तक जिनकी क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है, स्टूडेंट्स उनके नाम से काफी इन्फ्लुएंस में रहता है, और उसको लगता है कि उसके शहर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, एक अच्छा ब्रांड है, उसके पास अच्छे फैकल्टीज हैं, उसके सिलेक्शंस इतने हैं, तो उनकी तरफ एक तरह से इंक्लाइंड होता है. हालांकि ये हमेशा सही नहीं होता. एक एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी मार्केट काम करती है, मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, स्ट्रेटेजी होती हैं, जो माइंडसेट को स्वे करने का काम करती हैं गार्जियंस के, पेरेंट्स को. लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छे फैकल्टीज, इवन जो हमारे रिमोट एरिया हैं, जो छोटे शहर हैं, जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहाँ आज के केस में भी अच्छे फैकल्टीज मिल जाएं अगर, तो स्टूडेंट्स विल नेवर स्वे टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस. डेफिनेटली दे विल प्रेफर ऑफलाइन क्लासेस. लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ फैकल्टीज. हाँ, ये बात आपकी सही है कि सारी कोचिंग्स के लिए जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है, तो इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर देम टू कंडक्ट थ्रू वीसेट और टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस. तो ठीक है, उनकी फैसिलिटी मतलब उसका भी एडवांटेज बच्चों को लेना चाहिए. अगर उनके शहर में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो कहीं भी ऐसी वैसी जगह पढ़ने से अच्छा है कि वो वीसेट के थ्रू पढ़ाई कर लें ऑनलाइन. मतलब ये उन्हें अपने, दे हैव टू चूज इट वाइजली. उन्हें अपने डिस्क्रिप्शन से उसको कहीं चूज करना पड़ेगा, और उसमें वो किसी अपने बड़े की हेल्प ले सकते हैं, किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, या अपने ऐसे सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं जो पहले पास आउट हो चुके हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं. अगर बच्चा अच्छा है, मुझे लगता है कोचिंग के लेवल पर इंजीनियरिंग और मेडिकल में बच्चा सेल्फ ड्रिवन है, और उसके अंदर एक उसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग्स हैं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो ऑनलाइन क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम होने वाली है. क्योंकि हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव पार्ट में कंसेप्चुअल है, और फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट है. अगर बच्चे के कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है 12th लेवल तक के, तो एप्लीकेशन पार्ट पे उसे डील करना है, तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी समझ सकता है. बट अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम है, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस से काम नहीं चलेगा. उसको किसी टीचर की, फैकल्टी की पर्सनल केयर चाहिए होगी उन चीज़ों को समझाने के लिए. तो मुझे लगता है सर ऐसा. जी. सर, एक और क्वेश्चन है मेरा इसी से रिलेटेड कि ऑनलाइन और अगर ऑफलाइन क्लासरूम को कंपेयर करें, तो इट हैज बीन फाउंड कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, दीज आर मोर स्ट्रेसफुल. ऑनलाइन क्लासेस आर मोर स्ट्रेसफुल एज कंपेयर टू जो रेगुलर हमारा क्लासरूम लर्निंग होता है. ऐसा क्यों है? सर ऑनलाइन क्लास में मुझे लगता है सर, इट क्रिएट्स अ वेरी मोनोटोनस एटमॉस्फेयर. मतलब आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ना है, लैपटॉप के सामने बैठ जाना है, या मोबाइल सेट लेके बैठ जाना है, तो उसके साथ लगातार 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आपको उसे स्क्रीन के साथ लगे रहना है. ठीक है, तो उसका तो सर साइंटिफिकली जो इधर चीजें देखी जा रही हैं, उसमें ये भी आ रहा है कि ज्यादा समय तक मोबाइल रेडिएशन में रहने से हमारे बिहेवियर में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाता है. एक इरिटेटिंग नेचर हमारा बनने लगता है. ठीक है, हेडेक की प्रॉब्लम, आई साइट की प्रॉब्लम ये होती है. और जैसा कि मैंने बताया कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड वी नीड अ सोशल एटमॉस्फेयर जहाँ लोगों के साथ हम इंटरेक्ट कर सकें. बच्चा जब क्लास में होता है, तो उसके जैसे 10, 20, 25 उसके कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं. जो क्लास में 2 पीरियड्स के बीच में गैप होता है, उसमें अपने पीयर्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करता है. तो ये एटमॉस्फेयर एक चेंज होता रहता है, और उसकी वजह से उसको एक मतलब
एक तरह से फ्रेशनेस रहती है और अपने आप को रिवाइव करता रहता है। वो चीजें सर ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं होती। तो ये एक स्ट्रेस का रीजन होता है। और एक बात और है, अगर टीचर कोई लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा है ऑनलाइन क्लास में और बच्चे का लेवल उतना अच्छा नहीं है, वो मीडियोकर एवरेज बच्चा है, इसके पर्टिकुलर लाइन में उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझ में नहीं आई, तो बाकी की चीजें भी समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए स्ट्रेस हो जाता है फिर और जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आते हैं तो उसको बिल्कुल ही फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके अंदर एक लीव करने की टेंडेंसी आ जाती है, चीजों से बचने लगता है, स्किप करने लगता है वो। और जब डिसइंटरेस्ट क्रिएट होता है तो फिर उसका मोटिवेशन लेवल ड्रॉप होता है। तो ये कुछ रीजन है सर। टेक्निकल चीजों में भी जैसे कि इसके जो रेडिएशंस हैं इसकी प्रॉब्लम है, बिहेवियर में हमारे चेंज क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी चीजें जो रिसर्च हो रही हैं बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क है। लॉन्ग टाइम तक मोबाइल यूज करने से आई साइट की प्रॉब्लम आ रही है। आजकल बच्चों में स्पेक्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, ना आम बात हो गई है। तो ये सब तो हर्डल्स हैं। यही मैंने बार बार कहा कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं एक ऑल्टरनेटिव पूरी तरह सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती हैं उसका। हाँ, कुछ हद तक ये ऑफलाइन क्लास के साथ कॉम्प्लीमेंट करके चलें तो वो दोनों मिलकर अच्छा कर सकते हैं। ओके सर, रिसेंटली आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें कॉन्वोकेशन होना था एंड कोविड की जी वजह सर। से कॉन्वोकेशन पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने रोबोट्स लगाए थे जो रोबोट्स जाके स्टूडेंट्स की डिग्री ले रहे थे। हर स्टूडेंट की डिग्री उसका एक रोबोट ले रहा था और वो स्टूडेंट का जो चेहरा है वो रोबोट की स्क्रीन पे नजर आ रहा था। ये तो हुई एक यस सर। शुरुआत। तो क्या लगता है इन डिस्टिंक्ट फ्यूचर 20 साल बाद, 3 साल बाद, ये जो स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हम शायद ऑनलाइन एजुकेशन ही लेकर अपना स्कूलिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन गेन कर रहे होंगे? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो होता है वो हमेशा बेस्ट आउट करने की कोशिश करता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, रोबोट्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट ऑफ अ टीचर। क्योंकि हम उनका ब्रेन हम कितना भी डेवलप कर लें, माइंड कितना भी डेवलप कर लें, लेकिन इमोशनल कोसेंट को हम डेवलप नहीं कर सकते। ये एक प्रॉब्लम है। और रियल एजुकेशन जो होती है, आई थिंक इट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट और अ चाइल्ड और ह्यूमन बीइंग। जी जो हमारी जो ह्यूमन एंटिटी है सर, इट्स अ मल्टीफेकेटेड एंटिटी। इसमें हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, हमारा हार्ट है, ये तीनों डायमेंशंस हैं। और इसमें अगर किसी की भी ग्रोथ रह जाती है, नहीं हो पाती, इनकम्प्लीट होती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस होता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा माइंड से बहुत स्ट्रांग है, बट फिजिकली वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसकी उसके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, उसको मतलब हेल्दी नहीं है वो। तो वी नो दैट हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। जी तो वो कभी इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो अपने देश के लिए या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो बॉडी का भी हेल्दी होना जरूरी है, माइंड का भी हेल्दी होना जरूरी है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी हैं, लेकिन वो हार्ट उसका हेल्दी नहीं है। हार्ट हेल्दी का मतलब ये है, हार्ट से जो चीजें गवर्न होती हैं, मॉनिटर होती हैं। जैसे हमारे भीतर कंपैशन होना चाहिए। कोई रोबोट से हमें कंपैशन नहीं सिखा सकता, कोई रोबोट से हमें एम्पैथी नहीं सिखा सकता, कोई रोबोट हमें ह्यूमैनिटी नहीं सिखा सकता। जी अब जैसे हम बात करें, आज हम टेररिस्ट की बात करें, ओसामा बिन लादेन क्या टेक्निकली एडवांस नहीं था? ही वॉज ए सिविल इंजीनियर, एमटेक था वो। तो माइंड तो उसका बहुत डेवलप था, लेकिन कहीं ना कहीं जो हार्ट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें डेवलप नहीं थे। तो लोग जो मतलब इस तरह लोगों को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन की फेलियर है, हमारी अपब्रिंगिंग का फेलियर है, कि हम जो हार्ट का डायमेंशन है जी वो डेवलप नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है सर, एक मतलब परफेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होना चाहिए, इट शुड बी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, योर बॉडी, माइंड, हार्ट, ये सब कुछ डेवलप होना चाहिए। तो इसके बिना मुझे लगता है एजुकेशन इनकम्प्लीट है। अगर हम खाली माइंड को डेवलप करेंगे तो आई थिंक हम रोबोट्स बना सकते हैं, हम कभी भी लॉर्ड बुद्धा, महावीरा इस जैसे लोगों को नहीं बना सकते। तो मुझे आज भी देखिए आप, कोविड-19 के केस में हमारे पास इतना डेवलपमेंट है, लेकिन आखिरकार जो हमारे रियल सोल्जर्स हैं, रियल फाइटर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, जिनके पास कंपैशन है, वही हमारे काम आ रहे हैं। बिल्कुल अमेरिका की टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, हॉलीवुड की फिल्में इतनी सेंसेशनल बनती हैं, बिलियंस डॉलर्स में बनती हैं, लेकिन सारी चीजें फेल हैं आज। जो रियल स्ट्रेंथ है हमारी, हमारा कंपैशन, हमारी एम्पैथी, हमारे अंदर जो सर्विस की फीलिंग है, ह्यूमन काइंड की सर्विस की फीलिंग है, यही हमारे काम आ रही है। तो ये तब होगा जब हमारे हार्ट डेवलप होंगे, जो मतलब हम इमोशनली रिच होंगे।
एम्पैथी हमारे भीतर होगी, कंपैशन हमारे भीतर होगा। थैंक यू सर, ये ह्यूमन वैल्यूज की आपने बात करी, और कहीं ना कहीं कोविड में देखा गया है कि सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ रह गई और जो हमारा ह्यूमन टच था वही काम आ रहा है। भूखों को टेक्नोलॉजी खाना नहीं खिला रही है, एक इंसान ही खाना खिला रहा है। सर, बिल्कुल सर। कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स की फैकल्टी भी हैं एंड आप जी 12 सर। साल से पढ़ा रहे हैं, आपने हर तरीके के स्टूडेंट्स देखे होंगे, तो जी मैथमेटिक्स सर। का एक डर रहता है स्टूडेंट्स को, हवा हम्म। बना दिया है मैथमेटिक्स को। तो ये मैं आज इस कन्वर्सेशन को एंड करते करते आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा कि ये जो जी सर। मैथमेटिक्स का भूत है ये कैसे हटाया जाए सर से। सर मुझे लगता है मैथमेटिक्स को अगर हम डेली लाइफ के साथ जोड़ पाएं, सर टीचर वो चाहे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हो चाहे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हो, मैथमेटिक्स बच्चे की डेली लाइफ से कैसे एसोसिएटेड है, हर छोटी से छोटी इंसिडेंट में वो मैथमेटिक्स को अगर ढूंढ पाए और उसको बच्चे मैथमेटिक्स को बच्चे की रियल लाइफ के साथ एसोसिएट कर पाए, ताकि बच्चे को ये लगे कि वट एवर आई एम स्टडिंग इन द क्लास दैट इज नॉट इन वेन, वो बेकार नहीं है, तो उस वो कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर में काम आएगा। और ये मतलब टीचर को बच्चे के लेवल पे एसोसिएट होकर कर इस तरह की टेक्नोलॉजी लानी होगी, इस तरह की मतलब क्रिएटिव आइडियाज लाने होंगे। मैथमेटिक्स को एक फन बनाने का जो आइडिया है, मैथमेटिक्स एक मतलब एक गेम की तरह हो, फन की तरह हो, ताकि बच्चा उसको एंजॉय कर पाए। तो जब हम अपने काम को एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए काम नहीं होता, हमारे लिए एक मिशन बन जाता है। तो ये टीचर को ही सोचना होगा कि बच्चे की प्रॉब्लम किस लेवल की है, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल की प्रॉब्लम है या उसको कंसेप्चुअल लेवल की प्रॉब्लम है, उस तरह का मतलब इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी हमें बनानी होगी हर बच्चे के साथ। ये हमारे भारत जैसे देश में थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये काम करना होगा अगर हमें बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो मुझे लगता है कि मैथ्स को हम डेली लाइफ के साथ जोड़ पाएं और मैथ्स में इस तरह की एक्टिविटीज लाई जाएं जो इसको एक फन बना दें, तो आई थिंक बच्चा मैथ्स को एंजॉय करेगा या किसी भी सब्जेक्ट को एंजॉय करेगा उसको, अगर ऐसा मिलता है तो। जी तो अगर डेली लाइफ एक्टिविटी से जोड़ा जाता है और फन बनाया जाता है तो लोग उन्हें एंजॉय सर। करेंगे। और कहीं ना कहीं सर, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो वो डेली लाइफ एक्टिविटीज ही हैं जो ऑफलाइन क्लासेस को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। यस सर, यस सर, बिल्कुल। हाँ। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके रिव्यूज बहुत काम आने वाले हैं स्टूडेंट्स के। तो ये थे आशीष गोविंद राव सर, जिन्होंने हमें बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के डिफरेंस के बारे में। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह जो एक ह्यूमन टच है वो बहुत जरूरी होता है कहीं ना कहीं, और अल्टीमेटली जो काम आता है वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक ह्यूमन टच काम आता है, और इंसान सक्सेसफुल तभी होता है जब वो एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलता है दोनों के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। This video is brought to you by EduCoach. EduCoach is India's leading coaching institute aggregator platform, bringing together offline and online form of coaching institutes of the education ecosystem. Our data-driven search engine technology guides aspiring students at each step, assisting them with all their educational uncertainties. We cater both end users and educational channels, which are probably from all streams, namely IIT JEE, NEET, civil services, CA, CS, SSC, government exams, CLAT, CAT, board preparation, school level, and Olympiads, thus building unwrinkled connections between students and coaching institutes. With high maturity leads conversion ratio, we are enabling coaching centers to give maximum time focusing on academics itself, which will definitely translate to better exam preparation and will result to good All India ranks selection ratio from coaching centers.